Great. So we had covered up till PO creation yesterday. During the day one, we talked about why serialized management. Then we talked about some masters. In on day two, we talked about the listings, and then we talked about USN types, auto adjustments, why paper pick list needs to be blocked, how printers are configured, how barcode settings are done. Anything related to USN types, auto adjustments, or printer barcode things, anybody has any question, please do ask. And I am moving ahead with the things which are in the category of inwarding before we do the put away. So yesterday we talked about how we are creating the purchase orders in this system, and we also very quickly talked about how the put away is done and how the direct GRN or USN 5 GRN is done. But we'll cover that again today. So let's pick up the next topic, which is auto GRN. So can anybody quickly define what is auto GRN and what's the purpose of auto GRN? देखिए ऑटो जीआरएन मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि एनी जीआरएन डन विदाउट पीओ, जिसका मेरे पास कोई पीओ का रेफरेंस नंबर नहीं है, कोई मैंने उसे एक परचेज ऑर्डर नहीं दिया या मैंने उसे कोई मेल पे कंफर्मेशन नहीं दी है, मटेरियल आ गया और मुझे अर्जेंटली इन करना है, तो मैं ऑटो जीआरएन का सहारा लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ऑटो जीआरएन, जैसे कि हमने कल पढ़ा था यूएसएन टाइप्स बारे, तो ऑटो जीआरएन सब टाइप ऑफ यूएसएन में नहीं चलता है। कैटेगरी 1 के अंदर हम देखें तो ऑटो जीआरएन इज नॉट प्रोवाइडेड इन यूएसएन टाइप 1। टाइप 2 में ऑटो जीआरएन अलाउड है, यूएसएन टाइप 3 में ऑटो जीआरएन अलाउड नहीं है, टाइप 4 में ऑटो जीआरएन अलाउड है, टाइप 5 में ऑटो जीआरएन अलाउड है। ठीक है जी। तो और किसी बिजनेसेस में स्पेसिफिकली होता है कि नहीं जी, हमको ऑटो जीआरएन अपने यूजर्स को करने नहीं देना है, अगर अलाउड है तो भी हम बिना पीओ के कोई भी मटेरियल इन्वर्ट नहीं करेंगे। In that case, you can request and the tech can disable the auto GRN functionality for your account, for your specific location as well. So when we talk of auto GRN, there are two ways of doing the auto GRN if it is allowed into your USN type. One is through the web and the other is through the HST app. And in both the cases, the steps are defined. When we are on to serialize, when we are on to the devices, it is always recommended that you do it from the HST device. Shahrukh, can we very quickly see what is the process to do auto GRN through the devices? So when you go on to the app, please scroll. Please, let's go to the screenshots very quickly. Zoom kar do thoda. Right. You will see if the auto GRN is enabled. You will see select the option, navigate to the GRN module and start inverting the material from start inverting items tab. And then very quickly we go to the next tab. We will see this option, this button down there, this one, this green button down there, which says which is meant to do auto GRNs without purchase order. See, the one way is that we select the purchase order from the top purchase orders which are listed. The other way is, if we have to do auto GRN, we have to click on to this button, this specific button, and then we have to simply scan the SKU first. And then we have to scan the serial. This way, you are telling the system that I am doing the invert of this SKU, the serial numbers of this SKU through the auto GRN functionality. In case you have the things like batch, manufacturing date, cost price, etc., system will ask you about them. Otherwise, you can move ahead and click on the slide right and your GRN will be done successfully. It's as simple as that. Remember, auto GRN is done
if enabled through that button. Please scroll to that button. This button into your new start inverting items. Serial SQ scan kara, serial scan kara, and boom, you are good to go with inverting your items. Great. So any questions on to this? Quite simple enough, कोई difficult तो होगा नहीं. ठीक है जी. अब वही अगर आप ऑटो जीआरएन वेब से करते तो वहां पर आप पहले शीट भरेंगे, शीट के अंदर आपने सही डेटा भरा, गलत डेटा भरा, कैसे हुआ, क्या हुआ, वी आर अगेन डिपेंडेंट अपॉन whether the right serials have been received or not, whether the right SQs have been written in the sheet or not. Here, when you do it from the app, you are pretty sure that you are scanning what is in your hand, and eventually only that will get inverted into the system. I always tell people that you should avoid auto GRN for the very reason that we do not have track of what we ordered to our vendor or what we ordered to our manufacturing facility. So if even you are having in-house manufacturing, I'm sure you must be making to stock or make to order, whatever method it is. But you should issue a purchase order to your internal vendor, call that manufacturing facility, and against that purchase order only you should do the inverting. Auto GRN should be used in exceptional cases only, not as a standard practice. This is my point of view. Obviously, system provides the functionality to do it. Right. Let's move ahead to the next section, which is GRN. Now, as we have understood how the auto GRN is done, which is without the PO, let us understand how GRN is done against the PO. Shahrukh, let us very quickly see a video of, we have the GRN video, right? Of how the GRN is done. So into the GRN, we have, there are two ways to do it. One is QC bundled with GRN. The other is QC is not bundled with GRN. We'll see both the methods. First, we'll see that how GRN is done when QC is bundled with GRN. How many of you who are on serialized utilize auto GRNs? And why do you do that? If you could please explain, share. Yes, please. सर हम ऑटो जीआरएन सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में यूज करते हैं. जैसे हमारे पास कोई पीस बिना टैग के हमने पार्टी को माल बेचा, उन्होंने रिटर्न कर दिया, वापस इन्वर्ट करने के लिए पार्टी क्या करती है कि टैग हटा देती है, तो हमें नया इन्वर्ट करना पड़ता है. उसके लिए हम ऑटो जीआरएन यूज करते हैं बस. इसके अलावा हम पीओएस बेस इन्वर्ट करते हैं. तो एक बात बताइए, जब पार्टी आपको रिटर्न कर देती है तो आपको पता होता है ना कि ये कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट गया था माल? सर प्रॉब्लम ये है कि जो B2B के ऑर्डर्स हमारे पास रिटर्न आते हैं वो सारे हमारे सेल्स टीम के पास आते हैं और सेल्स टीम उसका मिक्सअप कर देती है. ओके, उस वजह से कई बार हमें पता नहीं पड़ता है कि कौन से ऑर्डर में कौन सा पीस गया है. इस वजह से हम उसको ऑटो जीआरएन यूज करनी पड़ती है. तो आप कह रहे हैं कि आप उसको फिर नया सीरियल नंबर देते हैं, पुराने वाला वाइप ऑफ हो जाता है? यस सर. ठीक है. तो ऐसे केसेस में while this is the right way, but I think कि हमको फिर उस कस्टमर ने रिटर्न करा है ये पीस की नहीं करा तो हमारी ट्रैकिंग खत्म हो जाएगी, राइट? तो आप उसको ट्रैक तो कर नहीं पाओगे. अगर हम उसको बल्क रिटर्न वाला जो ऑप्शन है हमारा उसके थ्रू करें तो वो फर्स्ट सबसे पहले जो सीरियल नंबर गया था उसको रिटर्न करेगा, उसका रिप्रिंट करेगा, राइट? कंपनी वाइड अगर हम उसको रिटर्न करेंगे नहीं, सीरियल नंबर तो है नहीं ना जब हमारे पास वापसी आया मटेरियल, और ऑर्डर नंबर भी नहीं पता जिसके अगेंस्ट गया था. ठीक है जी. आई थिंक इट्स अ वैलिड यूज केस दैट यू आर यूजिंग ऑटो जीआरएन. एनीबडी एल्स? कोई ऑटो जीआरएन और कोई यूज कर रहा है? बड़ी अच्छी बात है जी, कोई नहीं कर रहा है. चलिए चलते हैं, हम देखते हैं जीआरएन कैसे कर रहे हैं हम लोग. लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू द जीआरएन सेक्शन. ये हमने कल देखा था परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम. ये हमारा परचेज ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा
हम सप्लायर को दे सकते हैं या अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को जिसको ऑर्डर दिया है हमने। एंड देन अब हम देखते हैं GRN करने के लिए। GRN पहले हम वेब से देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, वेब से। तो देखिए GRN अगर आप सीरियलाइज का हम देख रहे हैं वेब से, तो हम सीरियलाइज का ही देखेंगे। While Shahrukh is opening this up, I would like to discuss another use case which we had encountered. होता क्या है कि लेट्स से हमारे वेंडर ने मल्टीपल परचेज ऑर्डर्स के अगेंस्ट सामान भेज दिया और उसने एक ही ट्रक के अंदर या एक ही व्हीकल के अंदर सारा मटेरियल मिक्स करके मल्टीपल पीओस का भेज दिया। अब उस केस में अगर आपको पीओ वाइज GRN करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ट्रक में से पहले मटेरियल अनलोड करना होगा और पीओ वाइज सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो ये एक एक्सरसाइज जो होती है थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि मैंने पहले ट्रक लोड खाली करूंगा, फिर उसको पीओ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सेग्रीगेट करूंगा, सेग्रीगेट करने के बाद में फिर उसको मैं पीओ वाइज GRN करूंगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड बनाया था जिसको हम कहते हैं कि आप विदाउट पीओ सिलेक्ट करे आपका ट्रक से जो जो मटेरियल उतरता जा रहा है आप उसको स्कैन करते जाइए सीरियल नंबर्स को और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पीओस के अंदर एलोकेट करके पीओस को क्लोज करता जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये अगेन सीरियल नंबर्स के लिए ही अवेलेबल होता है, सीरियलाइज इन्वेंट्री के लिए अवेलेबल होता है क्योंकि सिस्टम को पता होता है कि सीरियल नंबर आया क्या है और हमारे पीओ के अगेंस्ट सीरियल नंबर क्या असाइंड है। और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूएसएल में ही कॉन्फ़िगर होता है या किसी और में भी कॉन्फ़िगर हो सकता है, बट ये चेक करना पड़ता होता है कि आपके यूएसएल टाइप में ये किस तरीके से बिहेव करेगा। बट yes, this functionality is enabled and few of the clients are using. जो अभी हमने ऑटो GRN के टाइम बटन देखा था, the big button towards the bottom of the screen, same button is utilized to scan the items of the multiple POs in one go and system will automatically allocate those serial numbers जो PO के साथ सीरियल नंबर जनरेट हुए हैं या PO के साथ में सीरियल नंबर आए हैं थ्रू कैटेगरी 1 USLs एंड उसके अगेंस्ट को सेट ऑफ करके GRN कर देगा। तो देखिए आफ्टर योर स्टिकर्स हैव बीन पेस्टेड और whatever way the stickers have been pasted before PO और after before GRN, तो जब आप GRN कर रहे हैं ये हम USN टाइप 5 वाला देख रहे हैं जो हमने कल भी देखा था। हमने PO सिलेक्ट करा, नया GRN क्रिएट करेंगे, नया GRN क्रिएट करते हुए सप्लायर इनवॉइस नंबर हमको डालना है और सप्लायर का इनवॉइस डेट भी हमको डालनी है which is a metric which is getting captured well with the GRN. What happens is that sometimes suppliers send material of same PO in multiple batches. तो उस केस में ये हमको मदद करता है कि कौन सी डिलीवरी किस सप्लायर नंबर से आई थी। अब यहाँ पर हम जब GRN कर रहे हैं तो हम लेके चल रहे हैं गुड और बैड हमने पहले ही सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। हमने गुड सिलेक्ट करा, गुड के बाद हम SKU स्कैन करेंगे, उसका सीरियल स्कैन करेंगे। ये USN टाइप 5 वाला है। अगर आप USN टाइप 3 और 4 में होते तो आप डायरेक्टली सीरियल स्कैन कर रहे होते गुड और बैड सिलेक्ट करने के बाद में एंड योर GRN वुड हैव स्टार्टेड। Let's go ahead a little bit. ये पुट अवे हो रहा है अभी, पुट अवे पॉज कर दो, अभी पुट अवे नहीं देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई सवाल जी कि ये GRN के ऊपर हमने बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कुछ ज्यादा डिटेलिंग है नहीं इसके अंदर, बट फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया या एनीथिंग व्हिच यू गाइस थिंक is you have not got, please ask me. No questions? Shall I move ahead? Yes, please. Yes, okay, thank you. So now let us talk about a setting which
somebody has a question. Yes, please. हाय सर। Hi. Yes, please. सर एक क्वेश्चन था कि जो हम एसक्यू क्रिएट होता है हमारा, है ना, तो अभी हम ऐसे कर रहे हैं एसक्यू लगवा रहे हैं अभी प्रोडक्ट पे, जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन निकल के आ रहा है ना बारकोड के थ्रू, तो जो सीरियल नंबर है ऐसा नहीं तो उस एसक्यू के साथ ही हमें सीरियल नंबर अटैच होके मिले। तो उस केस में आप यूएसएन टाइप 3 में पीओ के साथ सीरियल नंबर जनरेट करके अपने प्रोडक्शन वालों को पकड़ा सकते हैं कि जब प्रिंट करें आप तो ये वाले सीरियल नंबर प्रिंट करके दें, या फिर आप कैटेगरी 1 के अंदर यूएसएन टाइप 1-2 यूज करें, जिसके अंदर आपकी फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि हम ये वाले सीरियल नंबर यूनिक प्रिंट कर रहे हैं, और पीओ के साथ जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो कैटेगरी 1 के अंदर आप पीओ के साथ सीरियल नंबर जनरेट नहीं करेंगे, बट जो आपके पीछे से सीरियल नंबर प्रिंट होके आ रहे हैं आप उनको इन्वर्ट कर लेंगे यूएसएन टाइप 1 टाइप 2 यूज करके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, जी सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम क्यूसी जो है पहले कर रहे हैं, मतलब जीआरएन के साथ में ही कर रहे हैं, बट देयर इज अ सेटिंग which allows you to do the GRN एंड वो सारा का सारा मटेरियल क्यूसी पेंडिंग में चला जाता है, आप क्यूसी बाद में करेंगे, फिर आपको क्यूसी वेब से करना होगा। शाहरुख प्लीज शो दैट सेटिंग वेयर इट इज। इसको हमने डिसेबल कर देना है, राइट? अगर हमने इसको डिसेबल कर दिया तो एचएसटी के ऊपर वो क्यूसी नहीं पूछेगा और आपका मटेरियल इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होने के बाद उसका स्टेटस मटेरियल का क्या हो जाएगा? क्यूसी पेंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चैलेंज है कि जो क्यूसी वाला काम है वो हम अभी मोबाइल ऐप से नहीं कर सकते। इट्स अंडर द रोड ऑन द रोड मैप टू बी रिलीज इनटू द एचएसटी डिवाइस एज वेल, बट एज ऑफ टुडे इट इज नॉट अवेलेबल into the mobile app. So after you disable this setting, ask QC on new GRN, system will not ask you about QC and it will, like I said, move the inventory to QC pending status. अब जो आपने उसका QC करना है वो आपने वेब से करना है। वेब से शाहरुख QC कहां से होता है वो हम दिखा देते हैं एक बार। जैसे नॉन सीरियलाइज में क्यूसी करते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर क्यूसी करेंगे जो हमारा मटेरियल है। हमको अगेन यहाँ पे परचेज ऑर्डर जीआरएन नंबर डालना होगा एंड हमको उसको एसक्यू एक बार सिलेक्ट कर देना। इफ देयर इज बैच देन इट्स ओके, अदरवाइज वी कैन सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ द इन्वेंटरी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस इन्वेंटरी? ड्रॉप डाउन में क्या आ रहा है? ड्रॉप डाउन दिख नहीं रहा स्क्रीन शेयर करने पे। QC पास एंड फेल। QC पास एंड फेल, और यहाँ पे हम सारे सीरियल नंबर स्कैन करेंगे या कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करके हम पास करेंगे और एक स्टेटस सेलेक्ट करा और फिर सीरियल नंबर स्कैन करा तो आपका नेक्स्ट एक विंडो खुलेगी जिसके ऊपर आप सीरियल नंबर स्कैन करेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर जैसे शाहरुख ने बताया कि हम अपना परचेज ऑर्डर जीआर नंबर एसक्यू डाल देंगे और स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे पास और फेल। ड्रॉप डाउन स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, शेयर नहीं हो रहा है। द ड्रॉप डाउन हैज टू वैल्यूज, पास और फेल। जैसे ही आपने दोनों में से एक सिलेक्ट करा, कंफर्म करा, सिस्टम विल देन आस्क यू टू स्कैन द सीरियल्स। यू कैन पिक अप योर बारकोड गन एंड स्कैन द सीरियल्स व्हिच आर पास, those will move to pass and the ones which you select as fail will move to QC fail. निखिल, फिर हम बैच में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? देखिए बैच उनके लिए बना ऑप्शन है यहाँ पर। जो लोग अपने मटेरियल को बैच वाइज इन्वर्ट करते हैं, दे मेंशन द बैच नंबर ऑफ द मटेरियल। इफ देयर इज नो बैच, you don't have to select anything. System will override it and will not ask you for a batch number. So batch is nothing but your manufacturing batch number which you are mentioning while inverting the goods. Okay, understood. Thank you. Any questions guys? Anything and any other question? It's simple enough. हमने वहां पे setting disable कर दी। अब वो किसी भी जीआरएन पर हमसे क्यूसी नहीं पूछेगा, सारा मटेरियल क्यूसी पेंडिंग पे चला जाएगा। वेब पर आके हमको परचेज ऑर्डर नंबर, जीआरएन नंबर डाल के सारी चीजें करके स्टेटस सिलेक्ट करना है। स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद हम सीरियल नंबर स्कैन करते जाएंगे तो हमारा जो है
आइटम इन द रिक्वायर्ड स्टेटस क्यूसी पास और क्यूसी फेल में मूव हो जाएगा. Simple enough. Shall we move ahead? No questions? Great. Now let us very quickly move to the next chapter, which is inverting, put away, and way forward. What to be done after put away? So let us divide put away into two categories. पहले क्या होता था कि सिर्फ आप गुड इन्वेंट्री का पुट अवे करते थे. अब कुछ ही महीनों से बैड इन्वेंट्री का भी पुट अवे, बैड जोन हमने देखा था जब हमने बिन मास्टर में बैड जोन बनाने का ऑप्शन था, राइट. एंड बैड जोन के अंदर भी आप बिन्स बना सकते हैं. दैट सिंपली मीन्स दैट क्यूसी फेल इन्वेंट्री कैन ऑल्सो बी पुट अवेड टू दी सर्टन बिन. रिपेयर इन्वेंट्री कैन ऑल्सो बी पुट अवेड टू दी सर्टन बिन. एंड व्हाट एल्स, विच अदर स्टेटस? QC pass, QC fail, repair, fraud and damage. These four status inventories, I'll repeat, QC pass, repair, fraud and damage. ये चार इन्वेंट्री के जो स्टेटस हैं, these can be put away into the bad zone. Only QC pass inventory will be put away to the good zone. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. Only QC pass will be put away to the good zone. इसका मतलब ये हुआ कि गुड जोन के अंदर जो भी इन्वेंट्री है, वॉट एवर इन्वेंट्री वी हैव इन गुड जोन, इट विल, द मोमेंट वी पुट इट अवे ऑन टू द शेल्व्स, ऑटोमेटिकली इट विल गो लाइव ऑन टू द चैनल्स. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सारे चैनल्स पे लाइव हो जाएगी. अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं तो उनको भी असाइन हो जाएगी. हम फटाफट से देखते हैं कि हम HST के थ्रू पुट अवे कैसे करते हैं. ठीक है. I hope you can see the screen. Shahrukh has shared the screen from his mobile phone. So here, whatever inventory is pending for put away, it will reflect in the for put away. जहां पे आपको ऊपर 255 दिख रहा है. अब आप क्लिक करेंगे पुट अवे करने के लिए फॉर पुट अवे के ऊपर, एंड यहाँ पे आपको चार ऑप्शन आएंगे पुट अवे के. GRN पुट अवे, रिटर्न्स पुट अवे, कैंसिलेशन पुट अवे, QC फेल पुट अवे. ठीक है जी. हम चारों को समझते हैं, चारों का पर्पस क्या है. GRN put away is meant for the new material which is coming against the purchase order or has been inverted through auto GRN. उस इन्वेंट्री को हम पुट अवे कर रहे हैं बिल्स के अंदर. रिटर्न्स पुट अवे, जो हमारे रिटर्न आ रहे हैं, वी हैव पंच द रिटर्न एंड द गुड रिटर्न हैज टू बी पुट अवे इनटू द गुड बिन्स. तो उसके लिए रिटर्न पुट अवे है. रिटर्न हमारे पास वेयरहाउस में आया, हमने रिटर्न को पंच करा एज पर द रिक्वायर्ड स्टेटस, एंड देन वी आर नाउ मूविंग इट टू द पुट अवे जोन और द बिन जोन. तो हम वहां से रिटर्न्स पुट अवे इस्तेमाल करेंगे. कैंसिलेशन पुट अवे, कैंसिलेशन पुट अवे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. हम आगे डाउन द लाइन जब ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करेंगे, वी विल चेक दैट आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो. Cancellation put away is for the orders which have been cancelled before the invoice has been generated into the system. अगर कोई ऑर्डर पिक हो गया, पिक होने के बाद पैकिंग स्टेशन पे चला गया और कैंसिल हो गया, तो वो कैंसिलेशन पुट अवे से वापस बिन में रखा जाएगा. बहुत लोग क्या करते हैं कि the material which is cancelled onto the packing station, when the screen tells you that this order is cancelled, they don't put it away. वो वापसी ले जाके रख देते हैं. Because of this, your inventory numbers start mismatching. The right process is that you have to even put away the cancelled order material. The last option is QC fail put away. This is meant for the items which are going into the bad zone. जो हमने QC fail करा, वो वाले items हमारे bad zone के अंदर जा रहे हैं. QC fail के अंदर return fail वाला भी आ सकता है, या कोई और QC फेल हमने करा किसी और तरीके से, वो भी QC फेल पुट अवे के थ्रू होगा. एनी क्वेश्चंस ऑन टू दीज 4 टाइप ऑफ पुट अवेज बिफोर वी मूव ऑन टू वन ऑफ देम? यस दयाम प्लीज. हाय सर. जी. तो हम आपने जो ये बताया, ये जो है रिटर्न्स पुट अवे, तो हम लोग क्या करते हैं, वो वी डू इज, एक हमारा जो ऐप है इजी कॉम का, इस पे हम लोग रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं 1 by 1 स्कैन करके, तो गुड एंड बैड पे सेलेक्ट करके, तो उसके बाद वो जब गुड करते हैं तो वो रीस्टॉक ले लेता है आइटम. तो वो क्या नहीं करना है, वो अब ये वाला करना है क्या? आप कह रहे हैं आपने रिटर्न पंच करा ऐप से, पंच करने के बाद वो उसको ऑटोमेटिकली लाइव कर देता है.
ऐसा होगा? तो हाँ ऐसा होता है, तो वो क्या अब ये रिटर्न पुट अवे करना है क्या उसके बदले में? आप देखिए, जब आपने रिटर्न पंच करा तो उसकी इन्वेंट्री को लाइव कैसे करते हो फिर? आप जब समझे आपने नहीं क्या? रिटर्न पंच कर दिया डिवाइस से, रिटर्न क्रिएट कर दिया, तो उस इन्वेंट्री को लाइव कैसे करते हो? वो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली लाइव हो जाता है, वन पीस ऐड हो जाता है एक बार चलें देखें रिटर्न इन्वेंट्री कैसे। पे। वो वन पीस क्यूसी पास में ऐड होता है आपके अवेलेबल, उसी पास जो में होता है वो। लाइव उसमें उसमें ऐड नहीं होता है वो। हाँ, अवेलेबल बिन में लाइव करने के लिए आपको उसका पुट अवे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। फिजिकल आप मटेरियल वहां रख दोगे बट वो जिंदगी में भी लाइव नहीं होगा। बिल्कुल ओके। सेम गलती जो कैंसिलेशन के साथ लोग करते हैं, कैंसिल को डायरेक्टली रख के आ जाते हैं, वो लाइव कभी नहीं हुआ, वो मटेरियल पड़ा रहेगा। रिटर्न जो आपने पंच करा दायम, जो वो रिटर्न आपने जैसे अंकित जी ने बताया, वो क्यूसी पास में जा रहा है, वो अच्छा अच्छा अवेलेबल में नहीं जाएगा। उसको करने के बाद में रिटर्न पुट अवे करना पड़ेगा, तभी वो अवेलेबल में जाएगा। या तो आप रिटर्न पुट अवे कीजिए या आप साइकिल काउंट कीजिए। साइकिल काउंट में वो क्यूसी पास से अवेलेबल बिन में चला जाएगा। अवेलेबल कर देगा। जो हम बात कर रहे थे कि सिस्टम, साइकिल काउंट के लिए आपको पूरी बिन ब्लॉक करनी पड़ेगी, आप इन्वेंट्री ब्लॉक करेंगे। यस अच्छा सर, आपका है, मैं सोचा संदीप जी का। ठीक है जी। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और किसी का कोई सवाल जी इन चारों पुटअवेज के ऊपर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दय्यम ने जो पूछा कि रिटर्न पंच करने के बाद उसका पुटअवे करना है। जो मैं फिर बोल रहा हूँ, कैंसिल हो गया अगर ऑर्डर पैकिंग स्टेशन पर, तो उसका वापसी लाके उसका पुटअवे करना है। डायरेक्ट लाके रख दोगे, वो वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं बिकेगा, कहीं इन्वेंट्री उसकी अवेलेबल में नहीं दिखेगी आपके। निखिल जी, जी एक छोटा सा डाउट है, ये जो यानी कि ऑर्डर मैनिफेस्ट से पहले जो कैंसिल होते हैं वो भी कैंसिलेशन पुट अवे में ही जाते हैं? देखिए, ऑर्डर मैनिफेस्ट से पहले जो कैंसिल होते हैं वो हाँ इनवॉइस बन गया, बट हमारे वेयरहाउस से वो डिस्पैच नहीं हुआ है, हमने उसको सोल्ड मार्क नहीं करा है, शिप नहीं किया उसको। शिप नहीं करा है। सोल्ड मार्क हो गया पर शिप नहीं करा है हमने उसको, तो वो कैंसिलेशन पुटअवे के थ्रू ही जाएगा, मैनिफेस्ट बनने से पहले तक का। और जिसका मैनिफेस्ट बन जाएगा उसका रिटर्न पंच करेंगे। वो रिटर्न पंच होएगा। वो तो हमने मैनिफेस्ट बना दिया, तो मैनिफेस्ट बना दिया इसका मतलब ये हो गया कि हमारे वेयरहाउस से वो बाहर, it is ready to be dispatched, it is as good as to be as good as like out of my warehouse. राइट। ठीक है जी। anybody any other question? ये मेजर सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं इन्वेंट्री के अंदर। लोग रिटर्न पुटअवे नहीं करते हैं, कैंसिलेशन पुटअवे नहीं करते, वापसी ले जाके रख देते हैं। आगे चलते हैं। शाहरुख, कौन सा पुटअवे कर रहे हैं हम? जीआरएन पुटअवे करें? तो हमने जीआरएन पुटअवे पे क्लिक करा। अब जीआरएन पुटअवे पे क्लिक करने के बाद सिस्टम बोलेगा पहले आप बिन स्कैन कीजिए। बिन स्कैन कर दो जी। तो शाहरुख स्कैन नहीं कर रहा है, एक मैनुअली कोई भी बिन डाल रहा है। अब बिन स्कैन करने के बाद सिस्टम बोलेगा आप सीरियल स्कैन कीजिए। यहां पे अभी कंटिन्यूअस स्कैन मोड इनेबल्ड है। You would also see that there is a toggle on, there are two toggles on your screen. One is non-serialized and serialized, वो आप चेंज नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस स्कैन वाला जो ऑप्शन है वो कॉन्फ़िगरेबल है बैकएंड से, या यूजर कॉन्फ़िगर करता है? कंटिन्यूअस स्कैन बैकएंड से कॉन्फ़िगर होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसको कंटिन्यूअस स्कैन डिसेबल रखना है तो वो डिसेबल रहेगा, ऑन रखना है तो ऑन रहेगा सब यूजर्स के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं पुटअवे कर रहा हूं तो बिन के बाद सीरियल, बिन सीरियल, बिन सीरियल, बिन सीरियल। मैंने अगर 100 पीसेस को पुटअवे करना है बिन के अंदर, तो 100 टाइम्स मुझे बिन का बारकोड भी स्कैन करना होगा। अच्छा, कमिंग बैक, बिफोर दैट हमको हर शेल्फ के ऊपर बिन का बारकोड भी लगाना है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सही तरीके से लगाना है। वो आप बिन के स्टिकर्स अपने बारटेंडर में बना के प्रिंट करके लगा सकते हैं। द मोमेंट यू इनेबल कंटिन्यूअस स्कैन, फिर आपने बिन एक बार स्कैन करना है और आप आइटरेटिवली सीरियल नंबर स्कैन करते जाओगे। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस करा था, कोई बताएगा गलती क्या होती है जी? कंटिन्यूअस स्कैन ऑन रखने से गलती क्या हो सकती है? कोई गलती नहीं हो सकती है? हो सकती है अगर ऑपरेटर नया है, एंड कभी कभी अननोइंगली भी हो जाती है। होता क्या है कि जी कोई बोल रहा है कुछ? ओके, सो होता क्या है कि जब हमने पहला बिन स्कैन करा, उसके बाद हमने 100 सीरियल नंबर उसको पुट अवे करने हैं,
तो मैं उस बिन को एक बार स्कैन करके, उस सीरियल नंबर स्कैन करके बिन के अंदर रखता जा रहा हूँ, मेरा बिन फुल हो गया। बिन फुल होने के बाद मैंने नेक्स्ट सीरियल नंबर उठाया और उसके ऊपर वाली शेल्फ में रख दिया, बिन में रख दिया, बट सिस्टम ने आपने पहले वाला बिन ही लेकर चल रहे हैं। उस चक्कर में हुआ क्या कि फिजिकली आपने ऊपर वाली शेल्फ में रखा है, बट मटेरियल सिस्टम में नीचे वाली शेल्फ के अंदर ही है। अब जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि योर पीपल आर ट्रेन्ड इनफ टू manage or handle the continuous scan and they will not make errors, you should not get the continuous scan mode enabled. उनकी ट्रेनिंग करवाइए, जब वो 100 बार बिन स्कैन करेंगे तो अपने आप आके बोलेंगे जी इसको कर दो, अब हमको समझ में आ गया है। ठीक है, चलें सीरियल स्कैन करें। अब यहाँ पे एक मैनुअली सीरियल नंबर डाल रहे हैं हम, टेक्निकली वो सीरियल नंबर स्कैन करा जाएगा। ठीक है जी, अब इसका पुट अवे डन सक्सेसफुली आ गया। This serial number 4263 has been put away successfully and ये लाइव होने के लिए चला भी गया है मार्केट प्लेसेस के ऊपर। ये वन क्वांटिटी ऐड होके लाइव होने के लिए चली भी गई है। आगे चलते हैं, एक सीरियल और स्कैन करेंगे। ये भी हो गया जी, पुट अवे डन सक्सेसफुली। अब एक रॉन्ग सीरियल नंबर स्कैन कर दो। सीरियल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई सीरियल नंबर आपने ऐसा स्कैन कर दिया जिसका आपने जीआरएन नहीं करा है, सिस्टम उसको पुट अवे नहीं करने देगा। सीरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इट, इट इज नॉट इनटू द राइट स्टेज, it is not into the right stage to be put away to your bin, hence it is not meant to go live on marketplaces and your channels. ठीक है, and we'll then click on done and your put away is done। कर दीजिए क्लिक डन के ऊपर। ये हमारा पुट अवे देखिए कंप्लीट हो गया और वो 255 की जगह 253 हो गया। इसी तरीके से रिटर्न्स पुट अवे भी काम करता है, इसी तरीके से कैंसिलेशन पुट अवे, इसी तरीके से क्यूसी फेल पुट अवे। 4 अलग अलग दरवाजे हैं उनके पर्पस के हिसाब से पुट अवे करने के लिए। फिर भी एक बार हम रिटर्न्स पुट अवे पे क्लिक करते हैं और देखते हैं स्क्रीन क्या मांगती है। देखो सेम ऑप्शन आ गया, बिन मांगेगा, कंटिन्यूअस स्कैन मोड इनेबल्ड है, फिर उसके बाद आपने सीरियल स्कैन करते जाने हैं आप कौन से बिन के अंदर कर रहे हैं। एक बार हम क्यूसी फेल का भी दिखाते हैं। क्यूसी फेल के अंदर भी सेम है। अब यहां पर आप गुड बिन नहीं सिलेक्ट करने देगा आपको। अगर आपने गुड बिन यहाँ पे स्कैन कर दिया तो सिस्टम दे देगा एरर। ट्राई कर सकते हैं कोई? ये गुड बिन है। Scanned bin is a good bin. Bad inventory can only be put away in bad bin. Please scan a bad bin from bad zone. तो सिस्टम आपको गलती नहीं करने देगा। वेराज अगर आप वेब से पुट अवे कर रहे हैं, यूआई से पुट अवे कर रहे हैं, शीट से कर रहे हैं, आपने कुछ भी कर दिया, आपका वेयरहाउस के अंदर लड़के कुछ भी करके आ रहे हैं, उसका कोई आपस में मैचिंग नहीं होगी। आप HSD डिवाइस यूज करोगे, स्कैनिंग करके करोगे, there is no scope of error. Obviously there are loopholes which people find कि हमने ऐसे करके गलती कर दी, तो ठीक है, सिस्टम भी एवर इवॉल्विंग है, वो लूपहोल्स को प्लग करता रहता है, बट at the behest you have lesser options in your hand to do mistakes. ठीक है जी, here we have completed how we are doing the put away. Any questions on to it and I'll be happy to answer them. Let's go back to the screen, Shahrukh, main screen. Any questions, guys? Yes, please. सर अभी हम लोग पुट अवे रिटर्न करता है सर। ओके, आज का 50 पीस रहता है, वो हम लोग आज नहीं किया है सर। नेक्स्ट डे 40 पीस करता है रिटर्न, बट वो पुट अवे करने के बाद क्या दिखाता है, अभी हम लोग 50 पीस करते हैं कल का, बट वो क्या लेते हैं 2 दिन का शफल होता है सर, बल्क करने के बाद पुट अवे बल्क। आप वेब से कर रहे हैं? हाँ वेब से सर। तो वेब से जब आप पुट अवे बल्क करते हैं तो शफल होता है, इसका व्हाट इज द इम्पैक्ट?
हाँ सर, अभी एसक्यू सेम रहता है, अभी आज सेम किया, अभी कल भी सेम रहता है। वो क्या होता है, हम लोग कल का करना है, वो क्या होता है दोनों का लेता है सर बल्क में। हाँ, बल्क में दोनों का लेगा, क्योंकि बल्क के अंदर आप शीट से कर रहे हो। वो शीट Yes, के sir. अंदर बोलेगा कि जो आपके आज के 50 में से 40 पेंडिंग है, कल 20 नए आ गए, आप 60 का पुट अवे कर रहे हो। यस सर, अभी हम ये की करना है, वो ऐसे नहीं होता है सर। आप कह रहे हो कि आपको पुट अवे सिंगल एसक्यू का करना है। सिंगल एसक्यू सीरियलाइज में तो कर सकते हैं हम, सिंगल सीरियल नंबर पुट अवे कर सकते हैं वेब से। सीरियल नंबर कर रहे हो आप, नॉन सीरियलाइज इन्वेंट्री में हो ना? हाँ नहीं सर, हम लोग एसक्यू कर एसक्यू कर रहे हैं। तो एसक्यू के अंदर तो वो आप क्वांटिटी डालोगे। हाँ यस सर, डालते हो ना कि मैं 10 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ। तो Yes. आज और कल वाले मटेरियल में आप कैसे अलग अलग बाइफरकेट करते हो? आपको कैसे पता लगता है एसक्यू में? हाँ सर, हम लोग अभी एसक्यू में हम लोग डेट देखते हैं सर, पेंडिंग पुट अवे में देखता हूँ, उसमें देखेंगे तो अभी आज का थोड़ा रहता है, कल का भी थोड़ा रहता है, वैसा हो जाता है सर वो। देखिए, नॉन सीरियलाइज के अंदर तो ये आपको आएगा, बल्क के अंदर आपका मिक्स एंड मैच होएगा। जब आप सीरियलाइज इन्वेंट्री से करेंगे तो आप स्पेसिफिक सीरियल नंबर को पुट अवे कर रहे हैं। जो सीरियल नंबर आज मेरा रिटर्न मार्क हुआ है, अगर आप उसका कल पुट अवे करेंगे तो वो आज वाला सीरियल नंबर ही पुट अवे मार्क होगा। नॉन सीरियलाइज में तो मिक्स एंड मैच होगा, होता है क्या सर? हाँ, होगा वो, ठीक है। हाँ। सीरियलाइज में नहीं होगा। सीरियलाइज में तो आप स्पेसिफिक सीरियल पकड़ रहे हो। अगर आपका 5 दिन पुराना कोई पुट अवे के लिए पेंडिंग पड़ा है, only that will then get put away when you are doing 5 days. Yes, ठीक है जी? okay sir, thank you sir. Great. Anybody else? Any questions? Great. Let's move ahead. Let's move ahead to the next section. And now we will move to the outward. We'll move to Hi Nikhil, I have a question. अभी जैसे जो हमारे मार्केट प्लेस के रिटर्न्स होते हैं, हम उनके AWB जो रिवर्स AWB नंबर होते हैं उनसे पुट अवे ट्राई करते हैं, पर वो नहीं होता है। रीजन क्या है उसका? देखिए, AWB नंबर से पुट अवे नहीं होगा। AWB नंबर से पहले आप रिटर्न मार्क करोगे। तो वही प्रोसेस करते हैं, जब तक का वो ऑर्डर ओपन ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, तो पहले आप जो बात कर रहे हो, पुट अवे का मतलब हुआ आप अपने बिन में ले जाके रख रहे हो, और ऑर्डर पैक पड़ा तो आप ले जाके बिन में रखोगे नहीं। मैं रिटर्न प्रोसेस का बोल रही हूँ। कोई शिपमेंट मेरा, एक शिपमेंट है मेरा, कस्टमर रिटर्न मुझे मिला है, ठीक है। रिटर्न प्रोसेस कैसा है? आपके पास जो भी डिटेल्स है, जिसकी मोस्टली हमारे पास रिवर्स ट्रैकिंग नंबर होता है रिटर्न्स के टाइम पे, हम वो सिस्टम में स्कैन करते हैं, ऑर्डर विजिबल होता है, ठीक है, बट वो नहीं होता है। देखिए, कुछ केसेस में मार्केट प्लेसेस आपको हमको रिवर्स AWB नहीं देती है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि मार्केट प्लेस ने पैनल के ऊपर रिवर्स AWB अपडेट कर दिया, बट हमारे पास पुराने वाला AWB आ रहा है, तो उस चक्कर में स्कैन नहीं होगा। अब ये ग्लिच किस साइड से होता है? मतलब ये मार्केट प्लेस से सिंकिंग का इशू है या इजी कॉम पे फ्लो होने का इशू है? मैं बताता हूँ, ये मार्केट प्लेस से सिंकिंग का इशू होता है। एक बार रिटर्न वाला ऑप्शन खोलें शाहरुख, यहाँ पे रिटर्न वाला ऐप के अंदर, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पूछता है सिस्टम, आप क्या स्कैन करो? रिवर्स AWB, फॉरवर्ड AWB, ऑर्डर नंबर, सब ऑर्डर नंबर, गेट पास नंबर, सीरियल नंबर। रिवर्स AWB नंबर। आपने रिवर्स AWB सिलेक्ट करा। कभी कभी क्या होता है कि ये Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों में प्रॉब्लम आती है। जब मैंने करा ई कार्ड से पिकअप करने के बाद में, जब मेरे लास्ट माइल वाले हब पर आया तो वहां ई कार्ड आगे डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो फ्लिपकार्ट या Amazon ने उसको कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप डिलीवरी को पकड़ा दिए, इसको पैकेट को डिलीवर करके आ जाइए। अब उसने लास्ट माइल के ऊपर AWB चेंज कर दिया जो आपके पैकेट के ऊपर लगा हुआ है, बट उनके सिस्टम में वही AWB चल रहा है जो पहले आ रहा है, जो पीछे से चला हुआ आ रहा है। अब उस चक्कर में आपके हाथ में जो पैकेट है उसके ऊपर जो AWB नंबर लगा हुआ है और सिस्टम में जो है वो दोनों मिसमैच हो गए। सिस्टम बोलेगा कांट, यही हो रहा है ना जी? हाँ, है ना? तो उस केस में आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है सिलेक्ट क्राइटेरिया के अंदर, आपको उनके थ्रू इन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप फॉरवर्ड AWB नंबर यूज करें, उसको रिवर्स पैनल पे जाके सिलेक्ट करें क्या नंबर आ रहा है,
उसका ऑर्डर नंबर निकाले, ऑर्डर नंबर ट्रेसिंग करके या यही फॉलो करते हैं, तो ये काफी टाइम टेकिंग है। कुछ इजीएस्ट ये वे है? इसका कोई इजीएस्ट वे नहीं है। अब देखो डेटा अगर नहीं आया, अगर कोई सादा से है यहाँ पर, तो सादा में भी एक केस हुआ था कि वहां पे अमेजोन उनको दे ही नहीं रहा रिवर्स एडब्ल्यू। उन्होंने कहा नहीं आपकी गलती है। तो हमने टिकट रेज करवाया अमेजोन में टिकट रेज करने के बाद अमेजोन ने कहा कि आप रिवर्स एडब्ल्यू से पंची क्यों कर रहे हो, आप ऑर्डर आईडी से कीजिए, हमारा प्रोसेस अलग है, ऑल दोस थिंग्स। तो अमेजोन ने जो उनको जवाब दिया, अब स्टैंडर्डाइज करके उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट बेसिकली अमेजोन ने अपने हाथ धो दिए कि नहीं जी ये तो हमारा इश्यू है, आपको उससे क्या लेना देना, आप ऑर्डर आईडी से रिटर्न पंच करवाओ। तो सेलर फ्लेक्स आई एम सॉरी तो सेलर फ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जब आप सेलर फ्लेक्स अपने पैनल से चला रहे हैं, जिसको हम WI कहते हैं, तो WI के अंदर वो कहते हैं कि आप रिटर्न पंच कीजिए ऑर्डर के बेसिस पे, रिवर्स एडब्ल्यू के बेसिस पे नहीं। ऐसा कुछ उनका प्रोसेस है, मैंने अपने हाथों से नहीं चलाया है। बट अगेन उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हो सकता है, आप ऑर्डर आईडी से पंच कीजिए रिटर्न को। सिमिलर केसेस अंकित जी आपके यहाँ भी आ रहे हैं कि रिवर्स एडब्ल्यू भी पैनल पर है बट इजी कॉम में नहीं है, तो उसमें भी सिमिलर कहानी है कि लास्ट माइल की पर उन्होंने एडब्ल्यू भी चेंज कर दिया और पहले जो एडब्ल्यू आया वो कुछ और है। हम ऐसे केस में सीरियल नंबर से काट लेते हैं। सीरियल नंबर तो तब उड़ा ना जब आपने पैकेट खोल लिया। हाँ, तो उसका वीडियो बनता है पैकेट खोलने से पहले। तो एक बार आप एक्सप्लेन करो हिना जी को राइट प्रोसेस क्या है जब आपका रिवर्स एडब्ल्यू भी स्कैन नहीं हो रहा है। आप लोग क्या तो गाइस अंकित जी रेड टेप में है। हिना जी हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सीरियलाइज इन्वेंट्री पे हैं, तो ऑल द 40 लाख पेयर ऑफ शूज आर ऑन द सीरियलाइज इन्वेंट्री। सो व्हाट वी डू इज, हम जब AWB हमारा ट्रैक नहीं हो रहा होता है या API वेरिफिकेशन या मान लीजिए मार्केटप्लेस ने AWB दिया ही नहीं और वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के थ्रू मुझे डिलीवर हुआ, तो जो उसके पैनल पे दिख रहा था वो एक्चुअल में AWB इजीकॉम में पंच नहीं हुआ। इन दैट केस हम क्या करते हैं, वी डू 100% वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कस्टमर एंड कुरियर रिटर्न्स, ताकि अगर उसमें कोई क्लेम निकले तो हम पैनल पे क्लेम के लिए वो वीडियो यूज करके क्लेम रेज कर दें, SPF रेज कर दें। तो मेरी जो इन्वेंट्री है दैट इज सीरियलाइज्ड। मेरे 95% केसेस में बॉक्सेस आते हैं, अगर आप सीरियल नंबर होता है। अगर आपको रिटर्न आया है और वो रिटर्न विदाउट बॉक्सेस है, तो हाउ कुड यू फाइंड कि ये सीरियल नंबर का प्रोडक्ट? फिर ऑर्डर आईडी फाइंड करता हूँ। सेम अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है, अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर इनिशियल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे AWB मैप हुआ नहीं मिल रहा है, AWB से आप पंच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर जैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट में होता है, हम ऑर्डर आईडी से काटते हैं फ्लिपकार्ट के बहुत सारे कुरियर रिटर्न्स। ओके अंकित जी जितना मेरे को याद है फ्लिपकार्ट के लेवल के ऊपर कहीं कोने में ऑर्डर आईडी लिखा होता है। ऑर्डर आईडी लिखा रहता है, बहुत जगह ऑर्डर आईडी लिखा रहता है, क्योंकि वो रिवर्स AWB से नहीं कटता, इसलिए हम फिर ऑर्डर आईडी से काटते हैं। ऑर्डर और कई जगह ऑर्डर आईडी का बारकोड भी होता है। हाँ, वो तो वो क्या देता है, वो क्या कहते हैं उसे, QR कोड देता है। QR कोड देता है। मार्केटप्लेस HSD डिवाइस यूज कर रहे हो तो QR कोड तो स्कैन हो ही जाना है फिर। कौन सा QR कोड सर? ऑर्डर आईडी का। ऑर्डर आईडी ठीक है। एक्शन में नहीं आता है मैं, क्योंकि मार्केट प्लेस और जो हमारे वेयर हाउस टीम है उनको मैं ही AWB नंबर प्रोवाइड करती हूँ ये सब ऑर्डर्स के रिलेटेड। तो वो लोग मुझे पैकेट का इमेजेस शेयर करते हैं, तो वो मेरे को फाइंड करना पड़ता है मार्केट प्लेस की रिपोर्ट से निकाल के। मुझे लगा आप कुछ इजीएस्ट वे बताओगे। दिस इज द ओनली वे, यही एक सिंगल ट्रैक सॉल्यूशन है इसका। ओके, नो इशू, थैंक यू। चलिए अंकित जी आपसे सुन के थोड़ा हिना जी को बेहतर लगा होगा कि इजी कॉम वाले तो हो सकता है कोई प्रोसेस गड़बड़ करते हैं, बट अगर कस्टमर बता रहा है, कोई यूजर बता रहा है, तो आई थिंक इट हेल्प्स अस आल्सो दैट दिस इज द ओनली वे टू डू इट। सर्टेन थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आल्सो। एंड जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी के अंदर हुआ था, वहां अमेजोन ने भी कह दिया कि हमने चेंज कर दिया, वो हमारा केस है, आपको क्या लेना देना उससे, आप ऑर्डर आईडी से पंच करो, क्योंकि सेलर फ्लेक्स के उनके SOP कहते हैं कि आप ऑर्डर आईडी से पंच करेंगे, ऐसा कुछ उनका SOP था। वी हैड दैट एज अ डॉक्यूमेंट एज वेल, तो उन ईमेल पे लिख के दिया अमेजोन वालों ने, इंटरेस्टिंग दिए हमको। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। मोटावे से रिलेटेड किसी को कोई सवाल?
नहीं है जी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। यहाँ पे हमने आज अभी तक कंप्लीट कर लिया है, मास्टर समझे, कॉन्फ़िगरेशन सीरियलाइज की समझी, यूएसएन टाइप समझे, हमने ये समझा कि पीओ कैसे क्रिएट करने हैं, पीओ के बाद हमने इनवर्टिंग कैसे करनी है, ऑटो जीआरएन कैसे करना है, डायरेक्ट जीआरएन कैसे करना है, क्यूसी जीआरएन के साथ कैसे करनी है और क्यूसी जीआरएन के बाद कैसे करनी है। हमने फिर समझा पुट अवे कैसे करना है, पुट अवे रिटर्न का, कैंसिलेशन का, जीआरएन का और क्यूसी फेल का भी। हमने ये भी समझा कि क्यूसी फेल वाला मटेरियल आपका लाइव नहीं जाएगा गुड जोन के अंदर। वी आल्सो अंडरस्टूड दैट वी कैन नॉट पुट अवे द क्यूसी फेल मटेरियल इनटू अ गुड जोन। सिस्टम ने एरर दिखाया वहां पे। तो सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस डिफाइंड है। सिस्टम आपके यूजर को, अगर आप डिवाइस यूज करेंगे, मिनिमल ऑप्शंस देगा ये सब गलतियां करने की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट एजेंडा के ऊपर था जो चैप्टर है विच इज आउटवर्ड B2C। वील वेरी क्विकली टच इट। हमारे पास अभी 5-10 मिनट 10 मिनट हैं। वील स्पेंड सम टाइम ऑन टू इट। हम पहले देखेंगे कि हमारा पैकिंग स्टेशन की सेटिंग्स क्या है, प्रिंटर की सेटिंग्स क्या है पैकिंग स्टेशन के लिए, और बैच क्रिएशन ऑटो मैनुअल का क्या मतलब है, इसके बारे में फटाफट समझेंगे। शाहरुख, पैकिंग स्टेशन सेटिंग्स खोल दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास पैकिंग स्टेशन, देखिए हम बात करते हैं कि पैकिंग स्टेशन का मतलब क्या है। पैकिंग स्टेशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्रोसेस करते हैं डायरेक्ट पैनल से, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप बल्क में लेबल और इनवॉइसेस प्रिंट कर लेते थे। फिर फ्लिपकार्ट स्मार्ट आया। स्मार्ट ने कहा कि आप पहले पिकिंग कीजिए, मैं आपको पिक लिस्ट प्रिंट करके दूंगा, फिर आप उनको स्कैन कीजिए, तब मैं एक एक करके लेबल दूंगा। सिमिलर अमेजोन में भी था। अमेजोन जो इजी शिप है उसके अंदर यू प्रिंट इनवॉइसेस एंड लेबल्स इन बल्क, but Amazon SellerFlex WI, in that model where SellerFlex is being run from the Amazon's panel, in that case you make those batches, you scan those serials and वो सारी चीजें होती हैं। तो वो जो स्मार्ट के अंदर और SellerFlex के अंदर फंक्शनैलिटी थी कि मैं एक एक सीरियल नंबर या एक एक एसक्यू को स्कैन करके उसके इनवॉइस लेबल को प्रिंट करूंगा, दैट इज व्हाट इज पैकिंग स्टेशन इन इजी ecom। The benefits of using packing station are very simple. In case you are using bulk invoices or bulk labels, in that case, I at least would not trust your process. लोग होते हैं कहते नहीं जी 100% एक्यूरेसी है जी हमारे प्रोसेस के अंदर, बल्क के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है जब आप सिंगल आइटम पैक कर रहे हैं। लेट्स से यू आर ऑन क्रेड एंड you got 5,000 orders for a single item. For single item, if you're printing bulk invoices and bulk labels, that's good. But if you're having multi-item orders, multi-quantity orders, how would you get assured that the right material has been sent into the right order? And I would not rely on human beings into doing this. I would ensure that the system controls the process. यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक्टिवेट पैकिंग स्टेशन एट B2C एंड एक्टिवेट पैकिंग स्टेशन एट B2B। B2B का भी पैकिंग स्टेशन है, राइट। और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि बैच ऑर्डर प्रोसेसिंग मोड ऑन करना है कि नहीं करना है, कि मतलब हमको बैच वाइज ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है या नहीं करनी है। ठीक है जी, ये तीन ऑप्शन हमने पैकिंग स्टेशन का B2B, B2C और बैच ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर हमने ऑन करना है, और हमको पैकिंग स्टेशन की सेटिंग्स यहाँ से इनेबल हो जाएंगी। पैकिंग स्टेशन रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग्स के ऊपर आएंगे, राइट। अब प्रिंटर सेटिंग्स देखते हैं पैकिंग स्टेशन के लिए कैसे होनी है। और नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस प्रिंटर सेटिंग्स आर कंप्यूटर स्पेसिफिक। These are not specific for your account but for computer specific. Here you are defining that what is your label printer after you have installed QZTray। हमने कल देखा था QZTray इंस्टॉल करा, आपने अपना लेबर प्रिंटर सिलेक्ट करा, इनवॉइस प्रिंटर सिलेक्ट करा, बारकोड प्रिंटर सिलेक्ट करा, और अगर कुछ स्क्रिप्ट है तो हमने वो सेट कर देनी है। I always recommend people to have at least 2 printers on your packing station. One is your A4 printer for printing your invoices. You may have it as a half sheet, that means A5 or something, or A4, whatever is the way of your working. And next is your label printer, which is a barcode printer, the 100 by 4 by 6
or the Flipkart has a peculiar size, na? What it is, 100 by something, 350 or something, na? 3 by 5. Flipkart uses 3 by 5. Everybody else uses 4 by 6. That is how I am aware about it. So you set that invoice label printer into the settings here, and your invoices and labels would get printed automatically from your packing station. तो ये पैकिंग स्टेशन सेटिंग्स, पैकिंग स्टेशन होता क्या है, और प्रिंटर सेटिंग्स, इन तीनों के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए. What is packing station? What is, how do you enable packing station, and what are your printer settings? No questions. Let's move ahead. Now, very quickly, we will go to new orders page. Into the new orders page, you will see all your orders which have come up from the marketplaces or offline mediums as B2C orders. Now, interestingly, there are certain orders which go into the failed tab as well, जिनकी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या कोई ऐसा ऑर्डर है जो हमारा सेल्फ शिप वाला है. दैट सेल्फ शिप मींस जिसकी कोरियर हम अरेंज कर रहे हैं, या हमारे अकाउंट से, हमारे कैरियर अकाउंट से कोरियर जा रहा है. दी marketplace ship is like e-cart or Flipkart or Amazon arranging courier for it. They'll come for pickup, not our courier company which we have aligned. So those type of orders go into failed orders. The ones where the inventory is assigned, the carrier is ready, everything's good to go, they will come in ready to confirm and you can process the orders. Right? Onto the left hand side, you'll see a lot of filters. You can filter out these orders as per your convenience, etc. How you want to see them, how you want to batch them and all. Size wise, country wise, state wise, quantity wise, multi-order, single item, some custom fields, priority wise, bin wise, zone wise. आप zone wise भी कर सकते हैं, ठीक है जी. SLA wise भी कर सकते हैं, तो आप filter out कर सकते हैं. Now let us go to one of the orders where do we have that multi-box? There is a term ना, multi-quantity, multi-box, जो कि marketplace ने कहा कि multiple boxes में जाना है, वो एक use case होता है. Yes, कोई कुछ कह रहा है जी? जी अंकित जी. मैं ये कह रहा था, स्प्लिट करने वाला ऑप्शन भी आप एक बार सबको बता देते. कौन से वाला सर? स्प्लिट करने वाला, मल्टी ऑर्डर क्वांटिटी को सिंगल स्प्लिट करने के लिए. हाँ जी, ठीक है. तो मल्टी ऑर्डर को अगर सिंगल क्वांटिटी में स्प्लिट करना है हमारे पास ऑर्डर आने के बाद में, शाहरुख जी बताइए कैसे करना है. तो हम ऑर्डर के अंदर आएंगे, देखिए ये जो यूज केस है ये इसलिए हो गया कि हम लेट्स से वी गॉट एन ऑर्डर विद मल्टीपल क्वांटिटी और मल्टीपल आइटम्स एंड वी डोंट वांट टू सेंड दोज आइटम्स इन वन गो. maybe you want to hold those items, available inventory है, कोई यूज केस है. अंकित जी आपके यहाँ क्या यूज केस होता है स्प्लिट करने का? हमारे यहाँ यूज केस वो वॉल्यूमेट्रिक वेट को जस्टिफाई करने का, वॉल्यूमेट्रिक वेट को जस्टिफाई करने के लिए कि एक दूसरा हमारे पास इतनी बड़ी पैकेजिंग नहीं है, कई बार 20 जूते का ऑर्डर आ जाता है. हाँ, तो आप उसको फिर क्वांटिटी वाइज स्प्लिट कर देते हैं, क्वांटिटी वाइज स्प्लिट कर देते हैं, उसको एक में कर दिया. तो यहाँ पे ये ऑर्डर को यू कैन स्प्लिट दैट ऑर्डर इनटू मल्टीपल ऑर्डर्स. You get an option to split this into a separate order. You select it and this will get split into a separate order for that same order. कर दीजिए. Split successful. सब ऑर्डर चेंज हो गया, इसमें ऑर्डर आईडी सेम रह जाएगा, सब ऑर्डर नंबर सेम रहेगा, सब ऑर्डर नंबर चेंज हो जाएगा. तो अब एक क्वांटिटी का इधर रहेगा, एक क्वांटिटी का उधर रहेगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. तो अंकित जी का यूज केस ये था कि लेट्स से उनको फुटवेयर कैटेगरी में है तो 20 पीसेस का ऑर्डर आ गया, एक सिंगल B2C ऑर्डर.
वहां पर if they ship the same 20 pieces into one courier, it will cost them a lot because it will go into a large size or it will fall into the heavy shipment or the next slab of courier charges. So they split it into two parts. They will be sending it through two AWBs for the same order, but and in two parts through split order functionality. पीछे चलते हैं जी, वापसी ऑन टू द न्यू ऑर्डर पेज। यहाँ पे हमारे पास जब ऑर्डर आ गए तो आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड हम इसका बैच बनाएंगे। विल गो इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर बैचेस। We have the new screen. यहाँ पर हम क्रिएट बैच के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एम्प्टी बैच विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। नाउ इनटू दैट एम्प्टी बैच वी विल ऐड आइटम्स। It says created just now. We'll add items into it. Again, we can use all those filters to select what all we want to add into the batch, marketplace wise, single item wise, multi item wise, and so on. What is as per your convenience, as per your logic of processing the orders. Zone wise also. Let's say first floor के आपके ऑर्डर अलग है, सेकंड फ्लोर के ऑर्डर अलग हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं कि आपने जोन वाइज स्प्लिट कर दिया। अब जोन वाइज स्प्लिट करने पे किसी का कोई सवाल बनता होगा तो प्लीज बताइए, नहीं तो मेरा एक सवाल है। एक ही ऑर्डर के अंदर दो आइटम है, एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, उसको जोन वाइज हम कैसे बैच बनाएंगे? आप लोग कैसे कर रहे हैं उसको प्लीज बताइए। एनीबडी? अंकित जी आपके यहाँ क्या करते हैं हम? हमारे यहाँ फ्लो बनाते हैं हमने, जैसे जब हमने बिन्स बनाई थी तब जोन डिफाइन किया था, फुटवेयर फर्स्ट फ्लोर, फुटवेयर सेकंड फ्लोर, तो हम जोन्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं उसको। नहीं, अगर एक ही ऑर्डर के अंदर दो जोन का मटेरियल आ गया फिर क्या करेंगे हम? स्प्लिट कर दीजिए, तो दो AW भी बन जाएंगे, मेरा कोरियर का खर्चा डबल हो गया। तो उसको ऐड कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ ऐसे केसेस कम आते हैं, कम आते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है, ठीक है जी। कई बार होता है जैसे एक जूते के साथ एक गारमेंट भी मांग लिया तो वो कैटेगरी चेंज हो गई है, कैटेगरी चेंज होगी। उस केस में हम क्या करते हैं, सिंगल ऑर्डर लाइन आइटम अलग बनाते हैं, मल्टी ऑर्डर लाइन आइटम अलग बनाते हैं। ठीक है जी। सो गाइज ये एक स्पेसिफिक यूज केस है जहां पर हमारे आइटम्स फ्रॉम मल्टीपल जोन्स एंड है ना, पौने 4 बजे है ना, वी हैव आइटम्स फ्रॉम मल्टीपल जोन्स एंड हमारे को बैच के अंदर जब ऐड करा तो आपको जोन वाइज स्प्लिट करना है कि फर्स्ट फ्लोर की पिकिंग का लड़का अलग है, ग्राउंड फ्लोर के पिकिंग का लड़का अलग है। ग्राउंड फ्लोर वाला ऊपर उठाने जाएगा तो वो इतना काम कैसे करेगा, उसका टाइम लगेगा, ऑल दोस थिंग्स। So there is an advanced functionality called sorting stations, pigeon holes, totes, etc. जो कि ई-कार्ट के वेयरहाउस में EasyCom चलता है तो उसी तरीके से चलता है। We will discuss it as a last thing after we have completed all the sections. But yes, अगर ऐसा यूज केस है तो आपके पास एक ही तरीका है कि या तो आप स्प्लिट कर दे, otherwise your same picker of ground floor goes to the first floor also to bring that material. If you want to avoid this, if you have a large warehouse, then there is a third methodology of wave picking, which is an advanced thing where your picking would also be serialized. We'll check it out towards the the end of the master class. The last chapter we'll keep it up. ठीक है जी। So यहाँ पर हमने बैच के अंदर ऑर्डर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में हमको वो ऑर्डर इसमें ऐड हुए दिखाई देंगे। ऑर्डर एक ऐड हो गया। इस तरीके से आप काम करते होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू डू दी प्रोसेस लाइक दिस दैट यू एवरी डे कम इन मॉर्निंग, क्रिएट बैचेस, बैच के अंदर आप ऑर्डर ऐड करते हैं, ऑर्डर ऐड करने के बाद फिर उसको पिकर को असाइन करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। आप में से कितने लोग इसी तरीके से काम करते हैं? हम करते हैं। ठीक है जी। प्रियंका आप भी ऐसे ही करते हैं?
हम भी ऐसे ही करते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं? और कौन लोग हैं? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। निस्मा ने भी बताया ऐसे ही करते हैं। ऑनलाइन स्टेलर्स आप लोग सभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक और तरीका बताता हूँ कि आपका अच्छा, एट एन एवरेज आपका रोज सुबह कितना टाइम खराब होता है ये बैचेस बनाने में? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। बाकी लोगों के यहाँ? जिसको वेव पिकिंग पे ले जाएंगे तब 0 हो जाएगा। हाँ जी, प्रियंका जी आप कुछ कह रहे हैं? 15 to 20 minutes. 15 to 20 मिनट्स। ठीक है जी, 10-15 मिनट्स। ठीक है जी। अब ये वैसे 10-15 मिनट आपके लिए पता नहीं सब्सटैंशियल है या नहीं है, बट इस प्रोसेस को भी हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेव पिकिंग। वो वेव पिकिंग एक लार्जर मॉड्यूल है, बट उसके एक सब फीचर है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन। what you would do is you will tell us the logic of your batch creation. You will tell us that okay, please automatically create batches at 9 a.m. of all the orders which are of today's SLA, and please create those batches of 20 orders in every batch and create them marketplace wise. 9 बजे वो सारे बैचेस बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो आपके 10-15 मिनट मैनुअली छाटा छाटी करने में सब लग भी रहे हैं, वो भी आपका काम खत्म हो जाएगा। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इनटू इट, प्लीज रीच आउट to EasyCom people in your WhatsApp groups and ask them that we want to enable automatic batch creation. आप अपना लॉजिक बताएं, वो लॉजिक आपको चेक करके बताएंगे कि कॉन्फ़िगर हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कुछ लॉजिक में थोड़ा बहुत चेंज करना है, या कुछ और एडवांस्ड ऑप्शन भी है, एंड उस हिसाब से आपको ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन सेट हो जाएगा। वो आ गया होगा, विवेक का मेल आया होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा बैच ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आपको मैनुअली बैचेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ता है, इट बिकम्स अ मेनेस टू क्रिएट, स्पेशली इन पीरियड ऑफ सेल्स। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑर्डर 9 बजे, एक बैच ऑटोमेटिक बैचेस 9 बजे बनाने, या फिर शाम को 4 बजे बनाने हैं, या फिर हर 1 घंटे के ऊपर ऑटोमेटिक बैचेस बनाने हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्लीज क्रिएट बैचेस ऑटोमेटिकली एवरी 30 मिनट्स, और प्लीज क्रिएट बैचेस ऑटोमेटिकली एज पर द डिफाइंड लॉजिक एवरी 1 hour. When you do those things, your batches would be created automatically and you won't have to create batches manually. This is something which you would have to get configured from the team. ठीक है जी? For all the people who are spending even 10-15 minutes, let's do some more productive thing in the morning. Get it configured. ठीक है जी? सर, बात करके मेरी टीम से, हाँ, वो कह रहा था सर मैंने 16 की डेट दी है, मैंने बोला मगर नहीं, तो 14 की रात को बताएगा जो कंप्लीट हुआ। हाँ, दो। ठीक है। सो गाइज, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? हमने देखा अभी न्यू ऑर्डर्स पेज, फेल्ड ऑर्डर्स पेज, बैच क्रिएशन, हाउ टू ऐड ऑर्डर्स इनटू बैचेस व्हिच यू ऑलरेडी नो, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन. Any questions on to these items? है कोई? अभी दिखा देते हैं आपको। एक शाहरुख बोल रहा है ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन का वीडियो भी है, वो फटाक से दिखा देते हैं। लेट्स एंड टुडेज सेशन, we'll continue. Interestingly, we have covered 3 subsections of day 4 today, so we have been able to speed it up. आपको ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन का एक वीडियो दिखा देते हैं, so you get an understanding of how it works. अभी दिखा। I think we should play it again with full screen. ठीक है, so this we call as automatic batch creation. First we configure how the automatic batches should be created. We call it wave. एक लहर आई और लहर में सारे बैचेस बना दिए, ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं वेव पिकिंग. तो वेव आपने डिफाइन करी कि आपकी वेव किस तरीके से क्रिएट होनी है. प्ले करो.
नहीं रुका हुआ है। हाँ, आई थिंक देयर इज सम इशू इनटू इट। शेयर हो रही है अभी। राइट, अभी दिख रहा है, प्ले कर दीजिए। अदर सेटिंग्स में जाके वी विल इनेबल वेव पिकिंग, ये हमने इनेबल कर दिया। हाँ, फुल स्क्रीन एग्जिट कर दीजिए। आई थिंक देयर इज सम इशू इनटू इट। गो बैक अ बिट। हाँ, अभी दिख रहा है, थोड़ा पीछे चले जाइए। ग्रेट। हाँ, राइट। सो वी इनेबल वेव पिकिंग, we enable wave picking here and create wave pick list। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक्सप्रेस वेव और स्टैंडर्ड वेव। एक्सप्रेस वेव होता है कि आपने एक्सप्लिसिटली एक वेव को क्रिएट करा, लॉजिक जो लिखा गया उसके बियॉन्ड। स्टैंडर्ड वेव इज समथिंग विच विल रन ऑटोमेटिकली। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टैंडर्ड वेव इट विल आस्क यू, प्लीज क्लिक ऑन टू इट, it will ask you how do you want to create filter by order SLA channel priority। तो आपने नेक्स्ट करा, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे ऑर्डर बैच साइज, हाउ मेनी ऑर्डर्स यू वांट इनटू इट, और द पिकलिस्ट साइज, एंड कितने समय में वो पिकलिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। वी हैव दिस पिकलिस्ट फ्रीक्वेंसी इन मिनट्स एंड पिकलिस्ट जनरेशन एवरी डे। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं टाइम कि इतने बजे ऑटोमेटिकली पिकलिस्ट क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने पिकलिस्ट ग्रुप भी डिफाइन कर देंगे, मार्केट प्लेस वाइज होना है, सेपरेट होना है, सिंगल मल्टी ऑर्डर्स का सेपरेट होना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करेंगे उससे बैचेस क्रिएट हो जाएंगे। ऑल ऑर्डर्स विच आर अवेलेबल फॉर वेव क्रिएशन आर फर्स्ट ग्रुप्ड ऑन बेसिस ऑफ मार्केट प्लेस एंड कोरियर। इफ मार्केट प्लेस एंड कोरियर सिलेक्टेड करेक्टली देन द नेक्स्ट स्टेप्स हैपन। तो ये आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑटोमेटिकली द बैचेस वुड गेट क्रिएटेड इन EasyCom at the specified time or at the specified frequency। अभी यहाँ पे कोई बैच क्रिएटेड नहीं है, तो ये जब ये डेमो बनाया गया था तो कुछ स्पेसिफिक टाइम सेट कर दिया गया था। हाँ जी, अब ये बैचेस सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। ये मैनुअली क्रिएट नहीं करे गए हैं, ये ऑटोमेटिक दिखा हुआ है। वेव टाइप स्टैंडर्ड, ऑर्डर टाइप सिंगल, additional filters marketplace, and automatically these batches have been created। You just need to configure the waves and the batches would get created automatically। ठीक है जी। Any questions on to this before we close today's session? सर फेल ऑर्डर भी ऐड हो जाएंगे क्या ऑटोमेटिक? नहीं जी, फेल ऑर्डर नहीं ऐड होंगे। फेल ऑर्डर जो रेडी टू कंफर्म में नहीं है वो नहीं ऐड होगा, फेल ऑर्डर नहीं ऐड होंगे। प्लीज गो अहेड इन आस्किंग योर क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस। ग्रेट। ओके, थैंक यू गाइस। आई थिंक वी शुड सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक क्वेश्चन था हमारा। जी बताइए। सर जैसे कि हम अपने बैच जैसे क्रिएट करते हैं, तो ऐसे जो ये ऑटोमेटिक क्रिएशन है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 2 आइटम्स 3 आइटम्स भी सेलेक्ट करते हैं, तो उनका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है तो वो ऑटोमेटिकली EasyCom कैच करेगा क्या, कि उसको फिर मैनुअली डालना पड़ेगा? देखिए, अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक वेट प्रोडक्ट मास्टर में सेट नहीं करा हुआ, डायमेंशन आपने प्रोडक्ट मास्टर में सेट नहीं करी हुई है, तो जब तक आप न्यू ऑर्डर्स पेज के ऊपर उनकी डायमेंशंस को ऐड नहीं करेंगे, वेट ऐड नहीं करेंगे, ऑर्डर नहीं मूव होगा आपके बैच के अंदर। नहीं, एक्चुअली हमारा हर प्रोडक्ट का सिंगल आइटम में हुआ है, मतलब किया हुआ है उसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट, बट 2 आइटम्स जब आता है मल्टी आइटम के केस में सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट कर लेता है और कैरियर को वही भेजता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टेलर्स, आई थिंक यू आल्सो हैव अ क्वेश्चन, प्लीज। ठीक है जी, आई थिंक नो क्वेश्चंस। यस प्लीज निस्मा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप बता रहे हो कि ऑटो क्रिएशन बैच बनेगा उसका, है ना? तो हाँ, तो उसके बाद अगर हम फेल्ड ऑर्डर्स की जो भी है इन्वेंट्री जो कम है, या फिर जो क्वालिटी का इशू रहता है उसमें,
वो पास करके फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाद में? देखिए, अगर आपने अपना फ्रीक्वेंसी सेट करी है हर 30 मिनट के ऊपर, जी तो ऑटोमेटिकली जब 30 मिनट के ऊपर आएगा तो सिस्टम बैच बना देगा। बट अगर आप जी। चाहते नहीं मेरे को तो अभी बनाना है, तो आप मैनुअली बैच भी क्रिएट कर सकते हो अच्छा, फिर वो एक्सप्रेस बैच बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेस वेव बनाना पड़ेगा, उसमें ले लेगा। बट या फिर एक्सप्रेस वेव हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। बट अगर मेरा SLA टाइम कम रह गया, फिर मेरे को एक्सप्रेस वेव बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें फिर वो होता है कि आपने जो अगर फ्रीक्वेंसी लेट से थोड़ी देर बाद की, बट आपका टाइम रीच होने का आ गया है, कुछ हो गया है, तो जी, आप सेटिंग के अंदर एक एक्सप्रेस वेव बना देंगे। एक्सप्रेस वेव से जो करंट इमीडिएटली वेव बन के वो ऑर्डर ऐड हो जाएंगे बैच के। ओके सर, मतलब उस बैच में तो ऐड नहीं कर पाएंगे ना हम जो नहीं, एक बार? नहीं, नहीं, नया बैच बनेगा। ओके सर, ये पूछना था। ठीक है जी, किसी जी का सर। कोई और सवाल जी? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? Great. Then let's end today's session. Thank you for joining in. I am glad that you have gone through. You have been here with me today for this third day of the master class, and I think things would start getting more interesting, more detailed as we move forward. When will we receive the recordings? Priyanka, we are in the process of uploading them to the YouTube channel. The editor is little bit editing, जहाँ जहाँ मैं रुक जाता हूँ या कुछ pauses आ गए उनको remove करके we are uploading them. You should start getting those recordings in I think a couple of days. Fine? Okay. Oh, Thank you guys. Have a good day ahead. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. thank you.